So cryptography comes. एवरीवन स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही है सबको? G screen visible. ओके। तो स्टार्टिंग विद द क्रिप्टोग्राफी, सबसे पहले है सिक्योर कम्युनिकेशन। Now, what is a secure communication needs and requirements? So basically, always there was a requirement for a secure communication ताकि मुख्तलिफ organizations अपनी जो communications हैं या अपनी transmissions हैं उनको किसी थ्रू से कर दें. अब why was it required? It was required because everyone wanted that उनके जो communications हैं वो secret रहें. एंड ओनली द इंटेंडेड रिसीवर्स मीन्स कि जो अथॉराइज्ड पर्सन्स हैं सिर्फ वो ही इन कम्युनिकेशन स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकें. सो दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग या सिक्योर कम्युनिकेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ एंड यूज्ड इन. तो सबसे पहले इसका यूज जो है हमारी वार्स के अंदर स्टार्ट हुआ. आफ्टर दैट इट वेंट इनटू द बिजनेसेस एंड love affairs, everything. But it started with a business war जिसके अंदर रिक्वायरमेंट थी that they wanted their communication to be secure from the unauthorized persons और the limited amount of persons जो उनके messages को intentionally देख सके. Now what is cryptography? Cryptography is the science of secret or hidden writing. So basically the way you hide or the way you secretize a message, आप लोग उसको जिस तरह से उसको सीक्रेटाइज करते हैं या सीक्रेट करते हैं, तो दैट इज नाउन एज क्रिप्टोग्राफी. एंड देयर आर टू मेन पार्ट्स इन क्रिप्टोग्राफी. वन इज इनक्रिप्शन, इन विच जो हमारा कंसर्न होता है while doing the encryption practice कि सिर्फ राइट पर्सन कैन रीड them. So only the right person who have the decryption key can read them. Anyone else without a decryption key cannot read those messages. While authentication and integrity, it is the surety जो हम लोग को ये कंफर्म कर देता है कि जो messages हैं वो real और unchanged हैं. So these are the two main components when we are studying basic cryptography. One is that the only right person can read it, and second thing is that it is assured that the changes are cannot be made, so the messages are always in their true form. Clear, everyone? Yes, clear. Okay. Now, what is cipher? A cipher is known as a method for encrypting messages. So, in cipher requires some kind of key to scramble and unscramble messages. Like cipher is a form of text which will require some kind of key, some kind of code, some kind of thing, some kind of algorithm, which will after that convert the message into its true form, yeah, into its real form. So that's known as cipher. And there are two basic major types of cipher text. One is symmetric encryption and second is asymmetric encryption. So the encryption algorithm and
इंक्रिप्शन, अब ये दोनों समझ जरूरी है कि इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इफ साइफर टेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, तो उसके लिए सेम की होगी यूटिलाइज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, while if it's an asymmetric encrypted, so that will require another key for encryption, another key for decryption. So दो keys होंगी in case of any asymmetric cipher text. Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट थिंग इट कम्स, जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स. नाउ द सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स आर वेरी इजी बिकॉज इनके लिए सेम की यूज होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन. बट वन थिंग, it's a little bit unsafe, or we can say risky. Now इसकी एग्जांपल में अगर लिया जाए तो एग्जांपल में there is a form of encryption known as Caesar cipher. So Caesar cipher is a form जिसके अंदर आप लोग लेटर्स को एक फिक्स नंबर के साथ चेंज कर देते हैं. So अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में होती हैं, इवन टेक्स्ट फॉर्म में भी होती हैं बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम. अब देर आर टू टाइप्स, मेजर टाइप्स. वन इज ब्लॉक साइफर्स. अब ब्लॉक साइफर क्या है, इनक्रिप्ट करता है फिक्स चंक्स ऑफ डाटा को. तो जो डाटा के चंक्स है ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स को जो है इनक्रिप्ट करता है. वाइल स्ट्रीम साइफर्स जो हैं वन बिट बाय टाइम करता है, तो मींस वन बिट वन बाय बिट जो है इनक्रिप्शन करता है. वाइल इन ब्लॉक साइफर्स हम लोग पूरे के पूरे 64 बिट और 128 बिट को just a second, I will answer all your queries. So की स्ट्रेंथ्स ऑफ असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, तो इसमें यह है कि स्ट्रेंथ ऑफ एल्गोरिथम जो है वो डिटरमाइन की जाती है साइज के की से. तो जितनी लॉन्गर की होगी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसको क्रैक करने का. और की लेंथ जो है वो एक्सप्रेस की जाती है बिट्स के अंदर. टिपिकल की साइज ऑफ अ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज 48 बिट्स एंड 448 बिट्स. और पॉसिबल कीज फॉर अ साइफर टेक्स्ट is called key space. For 40 bits key, there are 2 to raise for 40 possible keys. So in case if there is a 40 bit symmetric encryption, to 2 to raise for 40 time are the numbers which can be tried to actually bypass the encryption key. To crack the key, hacker has to use brute force. Supercomputers can crack a 56-bit key in 24 hours. It will take 2 to raise per 70 times longer to crack a 128-bit key. So basically, in case if you want to crack a key, crack a symmetric algorithm or symmetric encryption, it will take a lot of time, it will take a lot of resources. But still, it's a risky thing, but it will take time. So it's a clear thing. Encryptions, most of the time we think that they are irreversible or something like that. They are crackable, but it will take time, a lot of time. Okay, so substitution ciphers, so these are the Caesar cipher.
इसके अंदर क्या है? इज अ मेथड इन विच लेटर इन अल्फाबेट इज रिलेटेड बाय थ्री लेटर एज शोन. तो let us try to encrypt the message attack at dawn. Just give a quick गूगल के ऊपर जाएं सिंपली एंड सर्च सेजर साइफर एंड राइट इट अटैक एट डॉन एंड सारे अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में मेंशन करें क्या आता है एवरीवन. मीनवाइल मैं आपके आंसर्स को रिप्लाई करूं क्वेश्चंस को. So everyone did that. सेजर साइफर की सबको समझ आ गई कि हाउ डज दिस एल्गोरिथम इज वर्किंग. तो जब हमने इनक्रिप्शन की now encryption की तो plain text message था. I wanted to convert into the Caesar cipher algorithm and after that जो मेरा message है which was attack at dawn was converted into DWWDFN DWGDQ GDYQ. The answers you all are giving me. अब when it comes to the decryption term तो मैं ये सेम को वापस सेजर साइफर एल्गोरिथम से decrypt करना चाहता हूँ. So can anyone guess how many different keys are possible? 26. 20, 6. 26. Other guesses? 32, 25, 1. 26 का फैक्टोरियल. Hmm. So it is the 10 to the power 26 or 26 factorial. ठीक है. So monoalphabetic cipher. Each letter has to have a unique substitute and there are 26 factorial pairing of letters or 10 to the power 26. So brute force watch approach would be more time consuming.
नेक्स्ट है पॉली अल्फाबेटिक सीजर साइफर। अब ये वाला जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड। और हमारा प्लेन टेक्स्ट है, एंड आफ्टर दैट दिस इज द एल्गोरिदम जो वर्क करता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ साइफर टेक्स्ट। So I'm not explaining all the types here. So next thing है which is crypt analysis. तो crypt analysis जो है ना is the process in which we try to break into the encryption code tedious and difficult process. तो there are several techniques जो utilize होती हैं to deduce the algorithm, और attempt किया जाता है कि recognize किया जाए कि ये किस पैटर्न के accordingly algorithm, या किस पैटर्न के accordingly these are encrypted. So there is a known as the well-known algorithm is DES, data encryption standard. The goal of that DES is completely scramble the data key so that every bit of ciphertext depends on every bit of data and every bit of key. So DES is a block cipher algorithm, encodes plain text into 64-bit chunks or 8 bytes, thus it reduces to 56 bits. और ये यूज कहाँ पे होता है एल्गोरिदम, स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कमर्शियल एंड नॉन क्लासिफाइड, यूएस गवर्नमेंट यूज इन 1993। सो ये डीईएस 1993 से एल्गोरिदम चलना स्टार्ट हुआ एंड टिल डेट चला जा रहा। तो टेक्निक्स यूज जो होती हैं टू bypass this kind of algorithm is brute force, so trying all possible keys, which is a time consuming process. Second है statistical analysis, तो लेटर की फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है ताकि साइफर जो है करेक्ट हो सके, एंड मोस्ट कॉमनली इट इज डन थ्रू मैन इन द मिडल। सो यू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स एंड आप इंटरसेप्ट करते हैं ट्रैफिक को, एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू ब्रेक दैट एल्गोरिदम की encryption key. This is how the encryption framework is working. So there are multiple encryption algorithms: DES, triple DES, Blowfish, AES, RC4. So these are some industry level algorithms जो हर person whoever wants into the cyber security and wants to pursue a career as a forensic expert, as a cryptography expert, or also nowadays as a SIEM expert, या SOC L3 engineer. So you should know how the algorithms are working. एंड पर्सनली स्पीकिंग, जब तक आप लोग खुद एल्गोरिदम्स कोड नहीं करेंगे इन पाइथन और सी, आपको इनकी समझ नहीं आएगी। सो ट्राई टू डू द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। यू कैन सर्च यूट्यूब that how to use the algorithm of specific algorithm like RSA, DES, AES. So आप लोग उन algorithms को बेटर यूटिलाइज कर सकेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हेनेवर यू आर यूटिलाइजिंग इट, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी को समझना। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या हो रहा है,
एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की कुछ लिमिटेशंस है। पहली ये है कि स्पॉयर है सीक्रेट की का compromises। दूसरी है a key needs to be delivered to the recipient of the coded message for it to be deciphered। तो जो क्वेश्चन था आगे which was related to the will the key will be long given, so that's true। In symmetric encryption you also need to deliver the key in order to unlock the in order to unencrypt the decrypt the data। asymmetric के अंदर क्या है, there is a pair of keys for encryption, public key, and for decryption, private key। So there are two keys which are made when encrypting some message। तो मैसेज की जो इनकोडिंग होती है वो पब्लिक की के साथ होता है and can be only be decoded by the private key। most of the time people इनकोडिंग और डिकोडिंग को सेपरेट कर देते हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को सेपरेट कर देते हैं, while these are everyone बोर तो नहीं हो रहे सारे? सर जी सर ये प्राइवेट की के लीक होने के चांसेस होते हैं? प्राइवेट की के लीक होने के चांसेस होते हैं। प्राइवेट की के लीक होने का सबसे कॉमन चांस जो है वो स्पाईवेयर के थ्रू प्राइवेट की लीक हो जाती है। तो समटाइम्स देयर इज अच्छा समटाइम्स देयर इज अ स्पाईवेयर इन योर पीसी इन योर सिस्टम, तो उसके थ्रू आपकी प्राइवेट की जो है ना वो लीक आउट हो जाती। सो देयर इज अ चांस। ओके सर। So there is after that encryption decryption, there is one thing which is authentication। Authentication is the process in which the thing is validated। So basically, digital signatures, your authentication codes, your public infrastructures, these are validated। After that, you have been granted a and you will be granted a access। तो इसके अंदर दो टाइप्स हैं यूजर ऑथेंटिकेशन के, आइडेंटिफाई प्रेजेंटेड बाय अ रिमोट एप्लीकेशन और सेंडर्स आइडेंटिटी इज प्रेजेंटेड अलोंग विद द मैसेज। मैसेज रजिस्ट मैसेज रजिस्ट जो है वो इज अ फिंगरप्रिंट फॉर अ डॉक्यूमेंट। तो इसका क्या पर्पज है? टू प्रोवाइड प्रूफ दैट डाटा हैज नॉट अल्टर्ड। So basically, if we simply say that it's a log which assures that there is no changes on the document on the file, so it's a message digest generically। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है? जनरेटिंग अ मैसेज digest फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड हैशिंग। सो मैसेज digest का जो प्रोसेस है उसको हैशिंग कहते हैं। ठीक है, एंड हैश फंक्शंस आर वन वे फंक्शंस जिनके अंदर इनफिजिबल है टू रिवर्स द फंक्शन, एंड दूसरा है कंस्ट्रक्ट टू मैसेजेस which has to same digest। so basically this is a infeasible to reverse the function। तो आप लोग जो हैश चीजें हैं उनको इतना ज्यादा feasible नहीं है कि इन functions को reverse किया जाए। तो some one thing is hashed or gone through the message digest process, तो ये इतना ज्यादा feasible या suitable medium या mean नहीं समझा जाता कि उसको दोबारा dehash किया जाए। so that's why hashing को irreversible भी कहा जाता है। So there is a significant difference between hashing, encryption, decryption, encoding and decoding। Message authentication code, अब ये क्या है कि इसका creates a security by requiring a secret key to possess by both parties in order to retrieve the message। So आपको किसी ना किसी का सीक्रेट कोड चाहिए होता है या सीक्रेट ऑथेंटिकेशन की चाहिए होती है ताकि बोथ करते हैं। पार्टीज जो हैं वो मैसेज रिट्रीव कर सके। पासवर्ड
ऑथेंटिकेशन यूजर एंड द सर्वर। सो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है, कभी भी हमारा पासवर्ड अल्फाबेटिक फॉर्म में जैसे हम एंटर करते हैं वैसे सेव नहीं होता डेटाबेस के अंदर। दैट्स अ क्लियर थिंग। देयर आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स जिसके अंदर हमारा विंडोज का प्रोटोकॉल है विच इज Kerberos, and second thing is that personal tokens. There is another thing, authentications, iris recognition। अब ये वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? So iris authentication protocol कौन सा होगा? Can anyone guess? ये सीवी से कुछ होता है रिलेटेड, कंप्यूटर विजन से शायद। So basically iris, fingerprint, ये सारे authentication protocols biometric protocols होते हैं, and the chance of a same biometric protocol is the 1 in 10 to power 78 to 10 to raise power 78 is the chance that a biometric protocol can be same of two persons. Okay, so it's the most strongest authentication medium in the world जो हमारे biometric authentication से। Everyone clear? किसी को कोई डाउट हो? So now I'm going for the main segment जो हमारे क्रिप्टोग्राफी। For that purpose, it's a CTF, and there's a thing, a company stored a secret message on a server which got breached due to admin using weakly hashed passwords. Can you again access the secret stored within the server? Access the server using NC verbal sleep picoctf.net.
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हुआ नहीं वो ना सुबहान भाई के लाइट का शॉर्टेज हो गया पावर का, तो आई विल कंटिन्यू इट। मैं जस्ट आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ उसके बाद जो हम CTF करने लगे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। Okay. So sorry, there was a power outage at my side. I'm back. Shall I continue, Wasim? यस श्योर। Okay. So ANSI Web Sleep Protocol and tried using any hash cracking tool. So आज के दिन सिर्फ हम एक ही CTF solve करेंगे and I will give you an assessment because the cryptography most of the users के लिए बिल्कुल new thing होगी, तो I am taking it in a simple approach ताकि आप लोग इसको practice कर सकें and fed up ना हो इससे. Clear? So ANSI Verbal copy अब मैं इसके लिए तो मेरे पास ये एक वेब शेल एक्टिवेट हो गया. इफ आई गो बैक, मैंने हैश क्रैक करना था. एज सुन एज कॉपी इट, तो मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ. एंटर. नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड अ हैश एंड एवरीवन दिस इज विजिबल. Yes. यस. अब हम लोगों को सबसे पहले चीज कंफर्म करनी है कि व्हाट टाइप ऑफ हैश इट इज. ठीक है. सो आई विल सिंपली गो एंड सर्च हैश आइडेंटिफायर. This is the tool. As soon as I paste it, submit and identify, so it has given me a possible algorithm of MD5 hash. ठीक है. So मुझे एक possible algorithm मिला है which is a MD5 hash. What will be my next step? Can anyone guess? कोई टूल यूज करेंगे डिक्रिप्ट के लिए? कोई टूल यूज करेंगे डिक्रिप्ट के लिए? Any other guesses? मेरे ख्याल से MD5 का कोई टूल आप यूज करेंगे. मैं MD5 का टूल यूज करूंगा. हाँ. So I can use the hashcat also. बट फॉर दिस पर्पस, क्योंकि मुझे एक MD5 हैश का ऑलरेडी पता चल गया, सो आई विल यूटिलाइज MD5 हैश क्रैकर. एंड क्रैक स्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स जिसके अंदर आप लोग ऑनलाइन जो हैं हैशेस को क्रैक कर सकते हैं. सो आई सिंपली क्रैक द हैश एंड मेरे पास पासवर्ड आ गया है विच इज 123. सो माई फर्स्ट स्टेप इज डन. गोइंग बैक टू द शेल, पेस्टिंग. You have cracked the MD5 hash. Now there is another hash, and as I see the hash, I am considering that it's not a MD5 hash. By looking at the strings, मुझे ये लग रही है ये SHA की कोई फॉर्म है. So again I will do the same step. मैं hash identifier पे जाऊंगा.
I will enter it, submit and identify. So yes, it's a SHA 1 hash. अब इसके लिए मैं टूल साइबर शेफ पे भी ट्राई कर सकता हूँ. And if I input it and magic output, so this is not giving me a good output, या मुझे कोई आंसर सही से नहीं मिल रहा, because now I need to crack the hash. तो मैं इधर ही जाके SHA1 hash crack. So crack station can hash crack. I will paste the hash. I'm not a robot. Crack hashes. So again, I got the result which is let me in. Copy, paste it. Now again there is a hash. Now can anyone guess कि ये कौन सी हैश फॉर्मेट होगी, ये कौन सी हैश आइडेंटिफाई होगी? SHA 256. So that's the correct answer. Copy. Okay, sorry, my mistake. I just cancelled the server. I will copy it. मैं अगेन इधर ही जाके इस हैश को क्रैक करता हूँ. And now I had the results. QWERTY098. तो अनफॉर्चुनेटली मुझसे कनेक्शन अपना बंद हो गया. सो मैं दोबारा कनेक्शन कर लेता हूँ. And for this hash मेरे पास पासवर्ड है QWERTY098. So I got my flag. And this is how simply you will do any kind of CTF which is related to the cryptography. So today was the last day of our session and मैं सिर्फ एक ही फ्लैग कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद हैंड्स ऑन करें. And if you have any kind of questions, you can ask me in the group, you can ask us on the chat. So anyone, any questions till now? Okay, same bootcamp for Sim. Obviously after Eid we will try. I will be giving you a assignment जैसे हमारी आगे लास्ट थी, which will be a flag also for a cryptography related things. So आपके जो CTF है उनके जो बेसिक 3 सेगमेंट्स होते हैं लाइक वेब एक्सप्लॉयटेशन, फोरेंसिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी, तो वो हमने तीनों अपने बोट कैंप के अंदर वाइंड अप कर लिए. In case anyone has any kind of doubts, feel free to ask in group. There are multiple other people जो आपकी हेल्प आउट करेंगे. आई हैव सीन इन द ग्रुप, सो देयर आर मल्टीपल पीपल वी हैव इन द ग्रुप जिनकी नॉलेज थोड़ी सी अप लेवल पे है as compared to the beginners, so they can also help them out. I personally suggest that you can ransomware attack के साथ without paying anything, तो there is a chance of 80-20. So there is a 20% chance कि आप without paying anything ransomware से recover कर सके. So I personally recommend everyone backup is the chance. In case you don't have the backup, तो key extraction का 20% ही chance होता है as far as my experience.
ठीक है? Anyone, any questions related to the CTFs? Assalamu alaikum. Inshallah, we will be have a CTF competition coming soon. Either हम फिजिकल भी कराएंगे और एक वर्चुअल भी कराएंगे. तो पहले वर्चुअल कराएंगे ताकि सारे इजीली इससे क्लियर हो जाए और उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आम कंपटीशन सॉफ्ट है क्या, जितने भी कंपटीशन हो रहा है उसमें किस टाइप के कंपटीशन आ रहे हैं CTF के. Achha. And I just needed to share a huge milestone with all of you guys that Alhamdulillah I have taught 1000 plus students in 3 months for free of cost in cybersecurity. So आज वो मैंने 1000 प्लस का मॉर्निंग के अंदर ही एक सेशन के अंदर फिगर क्रॉस किया. So it's all about contributing with the community, and one thing is that you should be happy that you can achieve goodwill. So most of the time, people are trying to get into the cybersecurity for the sake of money. But when I started my career as a टीचर बैक 2.5 years बैक, तो मैंने पहले 3 माह भी फ्री में ही पढ़ाया था बच्चों को. I'm a premium coach, but still, and the thing is that whenever you are at a certain place, even have an experience of 6 months and you can help someone, so try to help that person without any intention, without any financial gains, without any identity. So try to help people and contribute with the community. सर Hmm. जी सर सर. मेरा क्वेश्चन था ये की एक्सचेंज एल्गोरिथम्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन था कि सर जो की एक्सचेंज एल्गोरिथम्स होते हैं ये इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए होते हैं. Yeah, sort of. आपकी एक्सचेंज एल्गोरिदम्स में टाइप्स आ जाती है ना, तो ये दो पार्टीज के बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि ये एक शेयर्ड की को आपस में सिक्योर रखेंगे ओवर एन इनसिक्योर चैनल, तो इनेबलिंग सिक्योर कम्युनिकेशन. सो बेसिकली इफ आई कंसीडर दैट थिंग, तो की एक्सचेंज एल्गोरिदम वर्क्स लाइक हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे जो आती है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन. सो दैट काइंड ऑफ एल्गोरिदम जिनके अंदर बहुत पार्टीज जो हैं वो एक सीक्रेट की शेयर करती होते हैं ओवर एन इनसिक्योर चैनल, एनेबल करने के लिए कि आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन इनेबल हो. एंड मोस्ट कॉमन सर जो एग्जांपल इज SSL TLS इसमें ये जी ये SSL TLS सर इसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं. SSL एंड TLS इंक्रिप्शन में RS एल्गोरिदम आई डोंट थिंक HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है ना जी सर. प्राइमरली. अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर अगर क्रिप्टोग्राफी देखी जाए, हाँ होता है, यूटिलाइज होता है. थ्योरेटिकली वी कैन एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन टेक्निकली इन डेप्थ में चले जाएं तो फिर थोड़ी सी इसकी शेप चेंज हो जाती है. बट होता है ये कॉन्सेप्ट यूज व्हेन देयर इज अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट. लेकिन जब मल्टीपल वेब सर्वर्स आ जाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. जैसे क्लाउड फ्लेयर सर्वर पे अगर कोई वेबसाइट आ जाती है तो फिर थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल चेंज होता है, अदरवाइज इट्स ओके. सो की एक्सचेंज एल्गोरिदम वर्क्स. एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? एनीवन, किसी के कोई क्वेश्चंस हो? हाउ वाज द बूट कैंप? Okay, Basim, shall we end up? श्योर सुभान भाई. सर जी बासिम. सर ये पूछना था कि मतलब आज कल आपको कौन सी फील्ड ज़्यादा बेस्ट लगती है, वेब होगी, फोरेंसिक्स, क्रिप्टो, रिवर्सिंग? पाकिस्तान के अंदर इन केस ऑफ जॉब तो फोरेंसिक्स, बिकॉज देर इज नाउ अडेज गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग है. सो गवर्नमेंट जॉब की वन थिंग बिसाइड ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, इट्स अ स्टेबल जॉब देन अ प्राइवेट सेक्टर जॉब.
So जी forensics, if I want to work in the Pakistan, and अगर मैं home based या freelance environment में हूँ, like an introvert kind of person, जिनको लोगों के साथ interact नहीं करना चाहिए पसंद, तो then I will choose the web exploitations, pen testing, bug bounty. And in बा, case, hmm? बाहर की कंट्रीज में भी यही होते हैं वेब नहीं, बाहर की रिव्यू। कंट्रीज में वेब पेन टेस्टर्स की बहुत अच्छी सैलरीज है। पाकिस्तान इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, बाहर की कंट्री में ऑल द फील्ड्स हैव डिमांड। बाहर की कंट्री में अगर आप खाली क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियर भी बन के जाते हैं तो आपको फिर भी जॉब मिलती है। पाकिस्तान में एज सच क्रिप्टोग्राफी इंजीनियर्स की जॉब नहीं है। इवन सिग्नोग्राफी की भी जॉब्स बाहर की कंट्रीज में है, पाकिस्तान में जिसको सिर्फ माइनर सा स्किल समझा जाता थैंक यू। है। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? I have a question. क्या हुआ? मुझे ये पूछना था कि मैं एक CTF सोल्व करी थी, उसमें एक मुझे मशीन मिली जो ऑलरेडी डिफाइन थी, डिफेक्टिव रैंसमवेयर अटैक से, ठीक है। और उसमें मैंने एईएस की रिकवर कर ली थी। उसके बाद मैं डिक्रिप्ट कर रही थी फाइल को, लाइक जो फाइल्स लॉक हो गई थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो आप मुझे कोई गेस दे सकते हैं कि मैं कैसे इसको मतलब कर लूँ डिक्रिप्ट फाइल को? I cannot Saira give you a guess like that जब तक मैं वो मशीन या कुछ स्नैपशॉट्स नहीं देख लेता। I cannot give you a raw wild guess in this thing. मल्टीपल मेथड्स मैं यूज कर लूंगा, लेकिन केस अगर मेरी डिक्रिप्शन करनी है तो आई विल ट्राई कि मैं सबसे पहले इस चीज को जानने की कोशिश करूं, रूट कॉज एनालिसिस के ये जो रैंसमवेयर था इसने कौन से प्रिविलेजेस लेके मेरी जो एप्लीकेशंस है उनको डिक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट किया। तो मैं प्रिविलेजेस को देख के ट्रेसेस को देखूंगा कि नाउ व्हाट आर द इवेंट्स एंड द लॉग्स जो ये क्रिएट हुए हैं दिस रैंसमवेयर के थ्रू, एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई कि मैं उस पैटर्न को रिवर्स कर सकूं। इट्स जस्ट अ वाइल्ड गेस, लेकिन until unless I saw the thing तो मैं आपको एक्यूरेट नहीं आंसर बता सकता। मैंने बेसिकली उसकी जो रैंसमवेयर की फाइल थी ना वो भी मतलब मैंने रीड की थी, तो क्या मैं आपसे वो शेयर करूं तो आप मुझे तब दे देंगे गेस? Yeah, you can share on the in the group also. So there are multiple people जो आपके help out करेंगे, नहीं तो I will have a look and tell you. That's not a big deal. After our communities are for helping people, so start sharing any kind of doubt. ओके, थैंक यू। Yes. शरवान भाई, आपके प्रीमियम कोर्सेज कहाँ और कब ऑफर होते हैं, लाइक वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह की जो कोर्सेज है? क्या कह रहे हैं शकील साहब? मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रीमियम कोर्सेज है आप कहाँ पर ऑफर करते हैं, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है हमें कहाँ से पता चलेगा, लाइक जो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कोर्सेज है या इस तरह की? Basically, the premium courses I don't personally sell as a person, as an influencer. So I have corporate agreements with multiple institutions. Like right now, I'm giving a training in Ministry of IT and Pakistan Software Export Board collaboration. These kind of things. I am there with you, sir. Huh. So that's the thing. And in case of the completely premium courses, so I do not suggest students or anyone कि वो उनके अंदर जाए, and I'm mostly not discussing the thing. सर फिर कोई बूट कैंप रखे सीम सॉल्यूशन और इसका जो वेब ओके, पेनिट्रेशन हम लोग सेम सॉल्यूशन का करेंगे। और वेब पेन टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स और भी हैं जी जो टेक हायरार्की के साथ एसोसिएटेड है। सो वासिम आर यू देयर? जी जी, सुभान भाई मैं इधर ही हूँ। हाँ, तो वासिम अब वेब पेन टेस्टिंग की नेक्स्ट बूट कैंप सीरीज, सो वी हैव मल्टीपल गुड पीपल्स इन द ग्रुप, और वो काफी यंग हैं, प्रीटी यंग पीपल हैं जो आप लोगों को गाइडलाइन करेंगे। एंड आफ्टर ऑल आई एम देयर विद यू ऑलवेज। हाँ जी, इस वक्त थैंक यू। बूट कैंप आप स्टार्ट करें? We don't have any dates right now, so after ईद ही होंगे अब। जी, एक And वजू after वजू 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 का एक प्लान है, उसके अलावा एक बग हंटिंग का बूट का प्लान है। ओके, वजू एंड स्नॉट वाले प्लान में तो मैं भी इन हो जाऊंगा। बग बाउंटी एंड वेब पेन टेस्टिंग के लिए we'll try to collaborate with other peoples also. जी, वो पर्सन आए तो कर लेंगे उस वक्त। हाँ,
काइंडली उसमें आप स्प्लंक को भी ऐड कर सकते हैं। I cannot confirm you or commit you at a moment क्योंकि मेरी टाइम स्लॉट्स ऐसी होती हैं. So I will confirm you. Inshallah we will try to get it soon. सर मेरा इंशाल्लाह। या काइंडली स्प्लंक को भी ओवरव्यू दे दीजिए। इनके नहीं, अगर मैं सीम सॉल्यूशन के अंदर स्प्लंक, स्नॉट और वजू तीनों को इकट्ठा चलाना चाहता हूँ ना, तो मुझे एटलीस्ट जो रिसोर्सेज चाहिए दे आर 32 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ SSD स्टोरेज जो आपके सिस्टम्स में हो. अदरवाइज वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में इतनी तीनों चीजें इकट्ठी नहीं चलती. सो दैट्स व्हाई हम लोग को फिर यूटिलिटीज को भी देखना. या वी विल ट्राई समथिंग लाइक AWS क्लाउड, जो फ्री टायर्स अकाउंट होते हैं उनके थ्रू कुछ ऐसा प्लान करें. बट राइट नाउ नो कमिटमेंट्स. इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट आफ्टर ईद. ओके, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा क्वेश्चन है एक। सर मैंने पूछना था कि क्या जैसे कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ वो VA आपको मीन्स के लाजमी हो जाता है या फिर आपके पास चॉइस होती है किस चीज की? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की? जैसे VA PT की जॉब्स होती हैं, मीन्स के ये एक ही पर्सन परफॉर्म करता है या फिर PT मीन्स के डिफरेंट पर्सन भी परफॉर्म करते होते हैं? इसमें अब डिपेंड करता है कि हाउ डज द सीजो वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सीजो और कंप्लायंस GRC जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके होते हैं. समटाइम्स PT is on the red team side and VA is on the blue team side, and after that they collaborate at a certain point जहां पे ये दो पर्सन्स आपस में इकट्ठे बैठ के काम करते हैं. पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वन थिंग इज दैट द कॉर्पोरेट पीपल थिंक दैट वन पर्सन इज अ ऑल वन मैन आर्मी. सो ये PT मोस्टली आई हैव सीन दैट के एक ही पर्सन करता है. सो पर्पल टीमिंग के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू टीमर्स को और रेड टीमर्स को, दोनों को ही. लेकिन इंटरनेशनली दोनों अलग होते हैं. क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया था तो उनका नॉट और टॉक 24 और चलता है. या इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. लेकिन मैंने एक बहुत अभी नया स्टार्टअप था एंड इट जस्ट गॉट अ बूम इन लास्ट 1 ईयर, एंड वहां पे जाके देखा एंड जो अभी बिल्कुल फ्रेश ही है, बिल्कुल फ्रेश इन द साइबर सिक्योरिटी, मींस कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट है एंड उसने कुछ CTFs की हैं, उसको शौक L2 L3 इंजीनियर पोजीशंस दी हुई थी. एंड वो L2 L3 पोजीशंस के अंदर ही वाज वर्किंग विद द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग. सो देयर इज नो क्लियर, अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में इतना ज्यादा हायरार्किकल सेटअप्स नहीं है. सर मीन्स कि मैं एज अ फ्रेशर VA PT पर फोकस या फिर मुझे अब इसमें मैं अपने साथ एक मजे का वाकया बनाता हूँ. तो देयर आर रिक्रूटर्स. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिक्रूटर एंड शी वाज अ फीमेल HR. अभी ये 3-4 दिन ही हुए हैं. And she just said that I want a cybersecurity engineer and I got your reference for a contractual work. I said, okay, these are my wages, these are the salaries. Obviously, I discussed them in the pounds. Everything was clear. लेकिन जैसे ही उसने मुझे एग्रीमेंट भेजा, वहां पे सारा काम AWS क्लाउड सिक्योरिटी का था. So, पहले रोल की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी थी, लेकिन जब आया तो तब AWS क्लाउड सिक्योरिटी भी मैंने करनी है, SOC भी मैंने संभालना है, सीम भी मैंने संभालना है. सो दीज आर द थिंग्स जो पाकिस्तान के अंदर होता है, क्योंकि मोस्टली HRs आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड्स. सो दैट्स अनफॉर्चुनेट थिंग. सर So you will face it a lot in the starting of the career, लेकिन try to get into the top 5 companies जो पाकिस्तान के अंदर साइबर का काम कर रहे हैं. Ebrix, Trillium, फेवरेट चॉइस. तो इनके अंदर जाने की कोशिश कर, ट्राई योर बेस्ट. उनको ही रीच आउट करना चाह रहा था, लेकिन मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आ गया, तो वो मेरे लिए भी इजी है. हाँ तो ठीक है, ओके. लुक, आई विल पर्सनली से दैट कि पहले 2-2.5 साल जॉब के भी फेज के अंदर जो है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो द एक्चुअल ट्रैक. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोग सिर्फ तो सिंपल जस्ट कैरियर स्टार्ट करते हुए आपको एक प्री डिफाइंड हो
कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ जाना। सर इसके अलावा FYP के बारे में कुछ डिस्कस करना था, आपके पास कुछ आइडियाज यहाँ पे शेयर करें कि VAPT। FYP के लिए तो FYP के लिए आई विल से दैट के AI बेस्ड मैंने 2-3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं, 2-3 FYPs ऐसे हैं जिनको आप आफ्टर अ टाइम एज अ प्रोडक्ट भी यूटिलाइज कर सकते हो। वन इज AI बेस्ड सीम सॉल्यूशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो। जिसको आप लोग ओपन सोर्स वजू और उसके ऊपर करके बैलेंस कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट which is a need, which is a virtual firewall। पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई वर्चुअल फायरवॉल नहीं है, इवन हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी अभी तक कोई इतने खास नहीं है। सो यू कैन ट्राई गेटिंग टू इनटू दिस स्टफ। ओपन सोर्स कोड्स पड़े हुए हैं, जस्ट R&D एंड वर्क। आपने शेयर किया था अपने पिछले सेशन में। अफाक आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है, यू कैन टेक्स्ट इन द ग्रुप एंड फर्दर आई विल शेयर द FYP आइडियाज। जी थैंक यू सर आप। ओके ओके बासिम ठीक एंड है कर ना? दे। जी जी सुभान भाई एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच Okay, सुभान भाई। thank you so much everyone for joining us। Hope so we will meet again inshallah, इंशाल्लाह। and stay in touch, number is always available। And one thing is that if I'm not replying and I'm not attending your call, so I'm a corporate person, तो मेरा phone अक्सर side पे भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई रिप्लाई पर्सन्स, तो मुझे आगे से वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि आप हमारी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, if I'm not attending someone's call, so basically I'm busy in something। Okay, so just drop me a text and I will get reach you out soon। Thank you, Okay, Shahan bhai. Thank you. okay, Allah Hafiz everyone। ओके, Allah अल्लाह हाफिज़ Hafiz. सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सुभान भाई। इंशाल्लाह यार हम ना एक फिजिकल इवेंट भी करा रहे हैं, तो आप सब फिजिकल इवेंट पे ज़रूर आइएगा। मैं उसकी डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा जल्दी। अल्लाह हाफिज़।